We are live. Just Yeah. let me share the link on my page and then we can start. Sure. There are a lot of people. Good evening all. आज हमारे साथ मोहन प्रकाश हैं. Mohan Prakash is an IFOS, that is nothing but Indian Forest Services Officer. And Mohan Prakash has been a very close friend of mine. He is from Mathura and he cleared IDJE. He is a chemical engineer. Then he went on to write the exam of IAS and IFOS. And ultimately, he got selected in IFOS. And today he is working in Jharkhand. So that is a brief introduction about Mohan. So let us first start our interview from the point. Mohan, what did you find interesting about forest? Thank you so much, sir, for inviting me to share my experience here. And it's my proud privilege to have interaction with you and through you to so many others. And when we talk about forest service, definitely I see like this is, I feel after coming from IIT to here, like one of the best place where one can be. And today the world is struggling with the pandemic caused by a coronavirus. This virus is one thing which has jumped from wild animal to the humans. And it is said that there is a animal called pangolin, Indian pangolin. It's a very humble animal, never attacks anyone. It eats ants and all these microorganisms found in the forest. And what it is कहाँ highly कहाँ होता है ये pangolin it इंडिया is के अंदर highly कहाँ ज्यादा traded पाया from India. It is highly traded from India to China. On every airport, you will find notices regarding illegal trade of Chinese pangolin. I myself, in my division, have caught people with the illegal trade with Chinese pangolin only. So उसके जो scales होते हैं सर, उसके जैसे हमारे नाखून होते हैं वो भी केराटिन होता है, उसके लिए उसे मारा जाता है. वो चाइनीज मेडिसिन में यूज होता था और उसको मारने के लिए बिल से निकालने के लिए धुआं किया जाएगा, फिर वो निकल के आएगा. तो उसकी सरफेस इतनी हार्ड है आप उसे पत्थर से भी नहीं मार सकते. तो व्हाट दे डू कि उसको वो उठाकर गर्म पानी में डाल देंगे, देन इट विल डाई. उसके स्केल्स निकालेंगे. स्केल्स की इलीगल मार्केट में वैल्यू ह्यूज है, मतलब यू कांट इमेजिन. तो नंबर्स बताना इज नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड. लेकिन अब ये जो चाइनीज पेंगोलिन है, ये इंडियन पेंगोलिन, ये इंडिया में काफी मिलते थे पहले, अभी काफी कम हो गए, एक्सट्रीमली थ्रेटेंड स्पीसीज में चले गए बिकॉज ऑफ इलीगल ट्रेड ओनली. अब ये ट्रेड होती है, चाइना जाता है. अब ये कहा जाता है कि कोरोना वायरस जो है पहले इस पेंगोलिन में गया, पेंगोलिन से ये बैट से पेंगोलिन में, पेंगोलिन से ह्यूमन में माइग्रेट हुआ है, अभी तक की जो स्टडी जो बोलती है. तो वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है आप देख सकते हो, एक छोटी सी इवेंट कितना बड़ा पेंडेमिक क्रिएट कर सकती है. एंड हियर इन आवर सर्विस वी आर ट्राइंग टू स्टॉप ऑल दीज थिंग्स. Today the market of wildlife trade from India is billions of dollars. Even trades जो हुआ है आपके बटरफ्लाईज में, यू डोंट इवन इमेजिन कि हम स्नेक्स तक, स्नेक के वेनम की, स्नेक्स की, बर्ड्स की, बटरफ्लाईज की और ऑर्किड्स की साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में ह्यूज ट्रेड होती है इंडिया से. So this service gives an opportunity to work at this interface, looking for those which doesn't have voice and seeing the life much closer. Now being in nature, you can see those facets of life. You will always get a better perception of human life, how we have involved while living in forest, living with wildlife, observing them closely, seeing their behavior. You will be amazed to see the behavior of birds and all these things. So this is a beautiful journey, sir, here, and this forest service is amazing service which provides you that opportunity. मेरे को लगता है कि यंग जनरेशन के अगर हम जाएंगे तो लोग बच्चों को 5 नाम भी पत्तों के या पेड़ों के या फूलों के नहीं पता होंगे,
और जानवरों के नहीं पता होंगे, और अगर पता होंगे उनसे कभी दिख जाए रास्ते में तो पहचान भी नहीं पाएंगे कि जिसका नाम याद किया था वो यही जानवर था, यही प्लांट था। तो बिल्कुल इसके सही लिए कह क्या रहे हैं करना सर। चाहिए, कुछ है तुम्हारे दिमाग में कि इसके लिए थोड़ा सा होना चाहिए कि लोग फॉरेस्ट को समझें बेसिकली, क्योंकि फॉरेस्ट को समझना कहीं ना कहीं थोड़ा जरूरी तो है। बिल्कुल सर, फॉरेस्ट जितना क्लोज रहेगा और इंसान फॉरेस्ट के इतना क्लोज, आज पेंडेमिक के टाइम में व्हेन सिटीज में जब बंद है, घर में जब बंद है, तो वी रियलाइज नाउ यू जस्ट हैव अ विजिट टू द फॉरेस्ट, 2 दिन रुकिए, एक दिन ट्रैकिंग, 2 दिन ट्रैकिंग कीजिए कैंप लगा करके, यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस इन योर सेल्फ, और डिफरेंट काइंड ऑफ अ पीस विल बी देयर इन योर माइंड, बिकॉज ह्यूमंस का वो नेचुरल होम है सर। लाइक जैसे हम लोग घर जाते हैं तो वो खुशी होती है, द सेम हम्म। हैप्पीनेस यू विल फील व्हेन यू गो टू द फॉरेस्ट। तो बच्चों के लिए तो मैं ये कहूंगा कि इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, दे शुड गो विजिट द फॉरेस्ट। अब कम से कम अपने जीवन में कुछ ऐसे पेड़ लगाएं, ऐसा कहा जाता है कि भाई आप अपने जीवन में 40-45 पेड़ के बराबर जो है, मतलब आप लगाते हैं तो देन यू आर लाइक, जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं उतना तो देके जा रहे हैं कम से कम, तो सही आपको बात। थोड़ा ज्यादा एक पेड़ को लगाना, उसे बड़े होते हुए देखना, सीड से आगे बड़े होते हुए देखना, और किस तरीके से ये, किस तरीके से फ्रूट हो रहा है, फ्रूटिंग हो रही है, किस तरीके से इस पे बर्ड्स बटरफ्लाईज आ रहे हैं, एंड डेवलपिंग बटरफ्लाई, नॉट ऑल द ट्रीज अट्रैक्ट बटरफ्लाई, नॉट ऑल द ट्रीज अट्रैक्ट बर्ड्स, developing beautiful garden, looking the nature from closely will totally transform the sir, मतलब आपकी थिंकिंग को, आपके विचारों को, आपकी कंसंट्रेशन को, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरत होती है स्टडी के टाइम पे, तो टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो वाली काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस रहेगा अगर लोग, अगर फॉरेस्ट से जुड़ें, तो दे कैन स्टार्ट विद स्मॉल प्लांटेशन एट देयर होम्स, they can take part in plantation within their schools and in the nearest society, and they can go for trekking in nearby forest areas wherever available. मतलब तुम्हारा ये सजेशन है कहीं ना कहीं तक कि मैं मोहन को तुम इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज की मोहन इज माय जूनियर फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड वी आर वेरी क्लोज राइट फ्रॉम आईआईटी डेज, सो आई कैन कॉल हिम एनीथिंग बट मोहन इज अ वेरी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी आल्सो. The way he connects with people around has been a very unique phenomena all his life. तो मैं मोहन से दो तीन सवाल पूछूंगा ऐसे रिलेटेड. एक तो मुझको ऐसा लगता है कि मोहन, जहां तक तुम ये सजेस्ट कर रहे हो बेसिकली कि लोगों को जब छुट्टियां मिलती हैं तो थोड़े दिन फॉरेस्ट में जाना चाहिए, रहना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो उससे बिल्कुल उनके सर। लाइफ के एक्सपीरियंस आएगा. क्या मतलब तुमने कभी आईएफओएस करने से पहले खुद कभी ऐसा किया था, या थॉट तुम्हारे तब ट्रांसफॉर्म हुए जब तुम फॉरेस्ट सर्विसेज में आ गए? सर मैं जैसे गांव में रहा हूँ, तो मैं शायद फॉरेस्ट के कितना क्लोज नहीं था, क्योंकि यूपी के जिस विलेज से आता था वहां पर रेन इतनी होती नहीं है, तो डेंस फॉरेस्ट तो नहीं मिलता वहां पर, लेकिन ट्रीज थे। तो मैं अपने खेतों पे काफी जाता था, मैंने खेतों में काम किया अपने पेरेंट्स के साथ, खेतों में पानी लगाना, खेतों फसल की कटाई करना, बीज बुवाई से लेकर खाद देने से लेकर सारे कार्य किए मैंने। तो कहीं ना कहीं मुझे लेकिन व्हेन आई केम टू फॉरेस्ट सर्विस, अब यहाँ आने के बाद लगता है कि अगर बचपन में किसी को इनसे कनेक्ट कर दिया जाए तो इट कैन ह्यूजली बेनिफिट। तो मेरा एक्सपीरियंस पहले का नहीं है, लेकिन अभी आप देखोगे तो इनफैक्ट इवन जू जो पहले हुआ करते थे, चिड़ियाघर जिसे बोला करते थे, केजेस में हम रखा करते थे एनिमल को, वो भी अब इंडिया में टोटली ट्रांसफॉर्म होगा, देयर आर नो मोर जूज एक्चुअली, वहां पे अब वो तो एनक्लोजर्स बहुत, बनाए जाते वो तो मुझे हैं बहुत इतनी क्रूअल बड़ी। प्रैक्टिस लगती है, मतलब जू वाली जो प्रैक्टिस है वो बहुत क्रूअल प्रैक्टिस लगती है कि आपको देखना है तो आप फॉरेस्ट में जाओ ना, आप उसको शहर में लेके क्यों आ रहे हो, पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है. दैट इज बिल्कुल वेरी सर, क्रूअल. आपको, लेकिन जो जू होते हैं सर आजकल, उनके अंदर केज नहीं होते, एनक्लोजर्स होते हैं, और ओके. एनक्लोजर्स में हर एक एनिमल के लिए एम्पल स्पेस होता है, जिससे वो अपनी नेचुरल सारी प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस कर सके। और जूस की इंपॉर्टेंस बहुत सारे और रीजन की है, मान लीजिए एक वल्चर है, वल्चर जो होते हैं सर एक ग्रुप में रहते हैं, वल्चर क्या करते हैं, वल्चर का बड़ा फैसिन, अगर वल्चर आपके नेबर वाई एरिया में रह रहे हैं तो कभी बदबू नहीं आएगी, कभी बीमारियां नहीं फैलेंगी, बड़े से बड़े एनिमल की बॉडी को 20 मिनट के अंदर खा के साफ कर देंगे। जो कोल्ड एरिया होते हैं वहां पर तो वल्चर ही एकमात्र साधन है सफाई करने का। ह्यूमन के सबसे बड़े फ्रेंड हुआ करते थे, डेड बॉडी को ही खाते हैं, कभी किसी पर अटैक नहीं किए। और आज देखो सिटीज के अंदर क्या हो गया, अब गार्बेज पाइल्ड अप हो रखे हैं, डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ गई है, मैगोट्स की पॉपुलेशन बढ़ गई है, बाकी मॉस्किटो, बाकी और बैक्टीरियल समस्याएं बढ़ गई हैं, उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग हुआ करता था, दे कुड डाइजेस्ट एनीथिंग। और इनका ये ग्रुप में रहेंगे, पहले एक आएगा, एरिया को सर्वे करेगा, देखेगा डेड बॉडी है तो देन इट विल रोम एंड अराउंड 500 किलोमीटर तक से जो है सबको बुला लेगा,
सब आएंगे, फिर सब एक साथ नीचे उतरेंगे, फिर उसमें से जो सबसे भूखा होगा वो पहले खाएगा। मतलब उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, और कमजोर होगा वो पहले खाएगा, उसके बाद सब लोग खाते हैं। तो दिस इज द सिस्टम एक्चुअली। और आज हमने उनको ही खत्म कर दिया है, जस्ट बिकॉज एक बुखार की दवा हम जानवरों को देते थे, वो खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं ये नेचर ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अस, एंड नेचर से कनेक्ट होके वी विल ऑलवेज बेनिफिट। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम बेनिफिट ना हो। एंड इट इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस फॉर एनी स्टेज। एंड अगर बचपन से होता है तो बच्चों का कंसंट्रेशन एंड कनेक्ट जो काफी, आज हम काफी दूर होते जा रहे हैं इनफैक्ट। तो चाहे सही बात, बर्ड्स की दूर बात, तो हो गए। ये बात तो तुम्हारी एकदम ठीक है कि दूर तो हम नेचर से काफी होते जा रहे हैं। बचपन की बात की तुमने, बचपन तुम्हारा कैसा रहा? और बचपन में तुम्हें लगता था बेसिकली तुम एक अच्छे स्टूडेंट थे या एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट थे? पर 12th तक की जर्नी कैसे रही? फिर तुम्हारी आईआईटी की जर्नी क्या है? नहीं नहीं सर, बचपन में तो मैं कभी अच्छा स्टूडेंट रहा ही नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो हाँ, टीचर भी लिमिटेड होते, तो पढ़ने में किसे मजा आता है, मुझे भी नहीं आता था। किसी को अच्छा नहीं लगता, तो मुझे भी लगता था कि क्योंकि हमारा पढ़ने का तरीका ही गलत है। हम रटे जा रहे हैं रटे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों पढ़े, जब तक मुझे नहीं पता है क्यों पढ़ना है, बड़ा सही बात। मुश्किल है इंटरेस्ट क्रिएट कर पाना। तो मेरे साथ भी वही होता था, मुझे भी मजा नहीं आता था, लेकिन लाइफ साइकिल चलती रही, पास होते रहे। गणित में तो सर जस्ट एक मतलब 20 में से 7 नंबर चाहिए होते पास होने के लिए, तो मेरे वो 7 ही आते थे। लेकिन फिर 10th क्लास तक पहुंच गए तो फिर लगा कि अब शायद करियर की तरफ सोचना पड़ेगा। लेकिन तब तक भी कोई चिंता नहीं थी, डेली के दिनचर्या वही, सुबह उठना, खेतों की तरफ जाना, फिर कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ट्यूशन का सिस्टम नहीं है, तो घर पे बड़े भैया दीदी ही गाइड करेंगे, वही सिस्टम चल रहा है। और पढ़ाई क्या है कोई मतलब पर्पज भी नहीं था। तो 10th हो गई, 10th 65%, तो बड़े खुश थे, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, लाइक आई वाज अच्छा, सो प्राउड, मतलब पूरे 10 में गांव में तुम्हारे 65% थे, है ना? जो हाँ मतलब आजकल बच्चे मेरे पास आते हैं जिनके 85-90% होते हैं और मुझसे सवाल पूछते हैं बेसिकली कि सर क्या हम आईआईटी के एग्जाम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो ये बहुत ही नोटिस कर जाना पॉइंट। यस, सर आप आगे। 65% आने के पे गांव में बतासे बंटवाए थे, वही बड़ी खुशी की बात थी। आई वाज सो हैप्पी कि फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए। तो मुझे लगता है कि आईआईटी का भी सिस्टम, उसे परसेंटेज से कोई मतलब ही नहीं। आईआईटी का सिस्टम बड़ा सिंपल है, लेकिन आजकल क्या है कि ऐसा बना दिया गया है, व्हेन एनी सिस्टम लाइक a coaching industry is an industry which and anything survives on creating demand, and demand can only be created by creating a fear that you can't do it all alone. You just a right guidance actually। मैं सर मुझे लगता है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये था कि मैं गया और मुझे किसी ने बताया कि 12th के बाद आप देखिए, आप आईआईटी करिए तो जिंदगी बन जाएगी आपकी, और एक बढ़िया ऑप्शन। तो मैं बोला कि भाई ये आईआईटी है क्या, ये नहीं पता था। और 12th भी सर जैसे ऐसे कर ली, कभी प्रैक्टिकल भी लैब के होते नहीं थे स्कूल में, एंड स्कूल सरकारी। तो आप समझ सकते हैं कि जनरली सरकारी स्कूलों को, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर वहां तक होती है। समझ के, हाँ, मतलब वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता था जहाँ तुम थे वहां दैट पे। इज, और मेरे टाइम पे अच्छा, नहीं था, और फिर टीचर्स का कमिटमेंट भी नहीं होता। और एज ए स्टूडेंट वी आर नेवर सो मच कंसर्न अबाउट करियर, एंड आई वाज नॉट। तो मैं तो 12वीं पास भी कर लिया, और मुझे पता नहीं था, somebody टोल्ड कि भाई देखो करियर है आईआईटी में बना सकते हैं। तो फिर हम प्रोस्पेक्टस वगैरह कोटा वोटा से मंगाए, देखा मैंने इनमें तो कुछ नहीं आता, और हमारा माध्यम था हिंदी, और सब इंग्लिश माध्यम में। और फिर रेस चलती है, चलो कोटा चलते हो भी जाएगा, तो जबरदस्ती भेजा भी गया, तो लेकिन कैपेसिटी नहीं थी पेरेंट्स की। देन आई डिसाइडेड कि भाई जा रहा हूँ तो फिर देन आई डू समथिंग। लेकिन जब कोचिंग में पहुंचा, तो पहली तो दिक्कत यही होती है कि भाई आईआईटी में तो एडमिशन बाद में मिलेगा, पहले कोचिंग में मिल जाए। तो दैट वाज द सिचुएशन। तो ये एक मतलब अजीब कोटा के सिस्टम अंदर था। कहाँ पढ़े? ये भी लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होगी कि कोटा के अंदर कहाँ पढ़े और कोटा की फीस कैसे पे करी। ये दो तीन, क्योंकि कोटा की फीस भी काफी होती थी। नहीं वो सर, सारी, मैं तो देखिए और वहां सर, की जर्नी। ये अपने आप में मैं तो ये मानता हूँ कि राइट गाइडेंस कोचिंग में मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि कोचिंग का क्या है कि 1 साल का 2 साल का कोर्स है। तो 1 साल जब कोई पढ़ाएगा, मान लीजिए केमिस्ट्री है सर, और 12th क्लास का केमिस्ट्री शुड नॉट टेक मोर देन 2 to 3 months। आप उसे 1 साल पढ़ाएंगे। अब 1 साल पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, उसमें फिर आप जो 70-80% एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे। ऑलरेडी आपने फियर क्रिएट कर रखा है, अब उसमें ऊपर से एक्स्ट्रा वर्डन दे दो इतना,
what will happen? Normal person will crush. स्ट्रेस इतना होने लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगने लगेगा। जब आदमी पढ़ने में मन नहीं करता तो वो दोस्त ढूंढता दूसरे, जो दूसरे काम में लग जाए, जनरली डाइवर्ट हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि हमें स्कूल लेवल पे सर ये नहीं होता कि हम सिलेबस नहीं देखते कभी, हम बुक्स नहीं देखते कभी, हम पुराने पेपर्स नहीं देखते कभी, और देखते हैं तो कभी दो चार, अगर 100 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन जो सबसे टफ आए उन्हीं पे फोकस। अरे ये नहीं हो रही, अरे 90 सवाल तो ऐसे आते हैं जिसके लिए टीचर की जरूरत ही नहीं। तो कोचिंग कोटा में कहाँ करी जाए? मैं तो ये कहूँगा कि अगर वास्तव में पढ़ने की आदत डाल ली जाए सर, ज़्यादातर जितने भी टॉपर आते थे हमारे साथ आईआईटी में, हमने जिनको देखा था वो सब सेल्फ मेड थे। सेल्फ, उनके अंदर एक ही बात थी कि वो किताबों को खुद से पढ़ते थे, और खुद से पढ़ने की आदत एक अच्छी अगर डाली जा सकती है, और एक राइट गाइडेंस, एक कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में थोड़े से जरूरत पड़ती है, लेकिन उतनी फुल फ्लैज कोचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप वास्तव में खुद से पढ़ सकते हैं तो आई वुड से कि बिना कोचिंग के भी आज अच्छा कर सकते हैं। और ऑनलाइन माध्यम आज एक इतना पॉपुलर होता है, वाई टू गो देयर। टुडे ऑनलाइन मीडियम इज सच अ पावरफुल मीडियम, यू कैन गेट बेस्ट ऑफ द पीपल एंड हु कैन गाइड। तो मुझे लगता है कि माइंड सेट हैज टू बी चेंज। इट्स नॉट द कोटा विच प्रोड्यूसेस द रिजल्ट, देयर आर सो मेनी पीपल ओवर देयर, बट लाइक माई केस आई वुड से कि अगर मैं ना डिसीजन लेता कि मुझे खुद से करना है, मैं तो अपनी सारी किताब उठा के ले गया, देखा कि भाई अब मुझे खुद से ही समझना, मुझे नहीं आएगा कोचिंग में कुछ समझ। क्योंकि कोचिंग के टीचर जब साउथ इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश में बोलते थे, मैं हिंदी माध्यम का ठेठ गाँव का अगर मैं कैंडिडेट था, तो मेरे लिए तो उसे ही समझना एक बड़ा चैलेंज था रादर देन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। तो मैं इंग्लिश समझने में स्ट्रगल ज्यादा करता था रादर देन कॉन्सेप्ट। तो मैं नहीं चाहता कि उस समस्या से कोई और गुजरे, तो हर एक अपना पाथ चूज करे। और आज एक ऑनलाइन माध्यम एक बहुत उचित माध्यम है, बहुत पावरफुल माध्यम है और सस्ता माध्यम है, उसकी वो उन तरफ लोगों अगर। के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से वो उन लोगों के लिए जो कि खुद केपेबल है, जो तुम वो बात करो कि खुद बुक पढ़ना, आई गेस ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे ख्याल से तुम अपने आईटीजेई का जो मैं दे पाया का निकालने का जो मेन तुम्हारा फोकल पॉइंट था वो था सेल्फ स्टडी, और तुमने जो खुद बैठ के बुक पढ़ी, खुद बैठ के जो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी, वहां से तुम्हारा आईटीजेई का रास्ता स्ट्रॉन्ग, राइट? बिल्कुल सर। अब मतलब अच्छा, तो तुम्हारे, हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं अपना आईआईटी जेई बता की रहा हूँ जर्नी कि कैसे रही उसके क्या बाद? सर। आईआईटी जेई के अंदर, आईआईटी जेई जब तुमने कर लिया, उसके बाद तुम्हारे आईआईटी दिल्ली के अंदर एडमिशन लिया केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, तो वहां पे हम्म। तुम्हारी केमिस्ट्री की जर्नी कैसे शुरू हुई, और उसमें तुम्हें केमिस्ट्री में जो तुमने पढ़ा या जिस तरह से तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसे तुमने आगे आईएएस के एग्जाम में क्या बेनिफिट मिला या आज क्या बेनिफिट मिलता है, इस पे भी बच्चों को बताना जरूरी है। क्योंकि आजकल के बच्चे क्या उनको लगता है केमिस्ट्री उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री नहीं पढ़नी चाहिए, आने इंटरेस्टिंग होती है। तो मतलब ये एक हाँ सब्जेक्ट केमिस्ट्री है जो, उसके बारे में मैं तुम्हारा गाइडेंस सीख करना चाहूंगा, बिकॉज जितना मुझे मोहन के बारे में पता है, ही हैज डन एक्सीलेंटली इन आईएएस एंड आईएफओएस, especially in chemistry, and chemistry has helped him a lot in all his selection process. तो एक बार तुम केमिस्ट्री के बारे में बताओ, आईआईटी में तुमने क्या सीखा, वो जर्नी कैसे रही तुम्हारी केमिस्ट्री की, और फिर उसको आईएएस तक लेके जाओ। सर देखिए, केमिस्ट्री में जब आदमी पढ़ता है, फिजिक्स में तो उसे चीजें समझ में आती हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो देख दे डेली बेसिस पे चीजें देखते हैं, तो फिजिक्स की चीजें वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मान लीजिए पुली को पुल कर रहे हैं, तो यू आर पुटिंग फोर्स, दिस इज मूविंग, दैट इज मूविंग, यू कैन फील दैट। मैथमेटिक्स में दीज आर सिंपल मैथमेटिकल, जो है आपके फॉर्मूलेज हैं, दे आर वर्किंग, ये चीजें ऐसे आएगी, काउंटिंग कर सकते हो, तो वहाँ एक कनेक्ट फील होता है। केमिस्ट्री भी उस तरीके की लैंग्वेज है। मैं आपसे बोलूं कि आप अरेबिक बोलिए, या मैं कोई चीज़ आपको जापानीज में समझाने लगूं, तो जब तक आप जापानी को नहीं समझाएंगे तब तक उसमें किसी चीज़ को समझ नहीं सकते। तो केमिस्ट्री की अब अपनी एक लैंग्वेज है। अब हम उसे इंग्लिश की तरह नहीं पढ़ सकते, हिंदी की तरह नहीं कर सकते, फिजिक्स की तरह नहीं कर सकते, गणित की तरह नहीं कर सकते। तो मुझे तो समझ में ये आया कि केमिस्ट्री से आसान कुछ हो नहीं सकता है। आईआईटी के दौरान जब केमिस्ट्री का पेपर आता था, तो अगर 3 घंटे के पेपर में मैं जनरली मैथमेटिक्स में आप 1 घंटे से सवा घंटा, 1 घंटा 20 मिनट देते थे। अब मैं केमिस्ट्री का पेपर 25 मिनट में, 25 से लेकर 28-30 मिनट में कर लेता था, तो मुझे बहुत समय बचता था। और दूसरा क्या था कि ऑलमोस्ट 100% सही होगा। भाई मार्क्स तो मार्क्स होते हैं, तो उस समय आपको अच्छी रैंक लानी है, अपना सिलेक्शन कराना है, तो विदाउट केमिस्ट्री यू कांट डू इट। एंड केमिस्ट्री इज सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, सच अ मोस्ट इजियर सब्जेक्ट इफ यू अंडरस्टैंड इट। कई बार क्या होता है कि सर जब हमें फॉरेन लैंग्वेज लगती है, तो पहला स्टेप क्या होता है कि चलो इससे पीछे भागते हैं, बोले ये समझ में नहीं आएगा।
तो हम कहीं ना कहीं ट्राई करना बंद कर देते क्योंकि हमें टीचर अच्छा नहीं मिला, या टीचर ने भी वही कोशिश की कि हम उन्हें रटा देते कि देखो भैया ये कैनिजारो है, रट लो। अरे भाई कैनिजारो है, लेकिन व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट कैनिजारो, व्हाई कैनिजारो इज हैपनिंग इन दिस स्पेशल मैनर एंड हाउ इट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बता दो। एंड इफ और इधर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज फंक्शनल ग्रुप्स। आज सब जो है सैनिटाइजर बना रहे हैं, अगर केमिस्ट्री पता होती तो अपना सैनिटाइजर घर पे बना के बैठे होते आराम से। क्यों मार्केट में नहीं मिल रहा तो क्या दिक्कत है? तो केमिस्ट्री की जो फिर उसके बाद अगर ये कहें आईआईटी में गए, तो आईआईटी में केमिस्ट्री और ये साइंस, बेसिक साइंस, वो बहुत ज़्यादा आपकी ग्रेड्स और उन सब चीज़ों को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है। बट केमिकल इंजीनियरिंग हैव अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ इट, but chemical engineering is a totally different part. But then I joined the industry. There was also a chemical operations plant. मुझे भी ये था कि देश में जाएंगे, इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे, कुछ करेंगे। But then industry is using the foreign technology and we are just operating it. So then I thought कि this is not the place where I am using my abilities to the best. Then I started moving towards civil services. Why not work at the public interface? और यहाँ पे बस इतना एडवांटेज है, इट्स नॉट पावर और प्रेस्टीज और समथिंग। you can take initiatives, you can work with them and you can bring results and you can get direct benefit. अभी फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम देते या सिविल सर्विस का एग्जाम देते तो वहाँ पे केमिस्ट्री एज ऑप्शनल लिया, और केमिस्ट्री एज ऑप्शनल इट वाज सबसे कम समय में तैयार होता है, मार्क्स भी सबसे ज़्यादा दे रहा है, अब उससे और क्या चाहिए सर? Final merit is always dependent upon marks. One optional subject is required. Now chemistry being so easy and so close to me, तो आई कुड स्कोर वेरी हाई मार्क्स फॉरेस्ट सर्विस में। मतलब ऑप्शनल में 400 में से 200 लाना मुश्किल होता है, 170 180 लाते हैं, मैं 250 ले आया सर। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन आई गो टू द फील्ड नाउ, अब केमिस्ट्री का उपयोग, सॉइल क्या है, सॉइल इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री, डेवलपिंग बायो फर्टिलाइजर इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री, डेवलपिंग मेडिसिनल प्लांट के बारे में, उनसे एक्सट्रैक्ट करने में इट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री, बाकी बहुत सारे बायोडीजल, बायो ऑयल निकालने, इट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री। वी कैन प्रमोट सो मेनी थिंग्स। सो केमिस्ट्री इज नॉट समथिंग विच शुड बी थ्रोन अवे कि ये कभी जिंदगी में काम नहीं आएगी। एंड जब इतना ईजीएस्ट टॉपिक है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में जितना एनर्जी लगाओगे उससे कम एनर्जी में और सॉलिड मार्क्स मिलते, तो मुझे लगता है इट शुड बी प्रेफर्ड। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो आईआईटी में एंट्री था ना सर, तो अगर वो इससे इजी हो जाता है पाथ, तो आई वुड प्रेफर इट शुड बी योर स्ट्रेंथ, इट शुड नॉट बी वीकनेस, एंड इट कैन नॉट बी वीकनेस। एंड मतलब मुझे लगता है अगर बाकी सब्जेक्ट में कमजोर हैं तो मेक योर केमिस्ट्री सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कंपनसेट दैट लॉस, बिकॉज यू मे नेवर बी श्योर कि भाई कई बार पेज बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छी एडवाइस है कि केमिस्ट्री, मुझे भी ऐसा लगता है केमिस्ट्री इज अ रैंक मेकिंग सब्जेक्ट, अगर हम उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं तो बहुत फायदा होता है। एक गौरव प्रकाश है नीति, उनका हमारे पास मैसेज आया कि हम हर एपिसोड के अंदर क्या कर रहे हैं, बेसिकली नए एक्सपोजर, नए बैकग्राउंड के लोगों को लेके आते हैं, जिससे बच्चों को समझ में आए कि देयर आर सो मेनी थिंग्स, so many things to learn, so many things to understand about life. There is again questions by Ashwini Singh. He has posted a beautiful question. Again, I will take that question in the end of this whole discussion. Gaurav Prakash is again saying that chemistry helped him got selected in IT, और ये बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट था। अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये अश्विनी सिंह का क्वेश्चन है, इसको आंसर करने की कोशिश करो। How is our notion doing in afforestation and wildlife conservation? How much governments are sensitive to the issue? The government is देखिए अफॉरेस्टेशन एक प्रोग्राम है विच में गवर्नमेंट ने जैसे कि अभी हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं 2.5 बिलियन टन हमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना है, और दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू अफॉरेस्टेशन। वी हैव अ पॉलिसी टारगेट दैट 33% एरिया ऑफ द कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट। तो अफॉरेस्टेशन इज गोइंग ऑन एंड ऑलरेडी जब भी कोई लैंड डाइवर्ज होती है तो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का प्रोविजन होता है। इफ यू आर डाइवर्जिंग सम, कोई प्राइवेट बॉडी को एक यूनिट लैंड दी गई है तो उसको 2 टाइम्स और उससे भी ज्यादा अफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। बट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन गवर्नमेंट is sensitive, government is putting effort, we are implementing it, but lot many things depend upon the cooperation from the society. So wildlife awareness itself is a missing, wildlife awareness is missing, and the country का जो अभी तक का developmental process रहा across the world, the focus was environmental consciousness has come quite later. So now we are experiencing its ill effect, whether it's a attack of desert locust, तो जैसे अभी सिटीज में देखा होगा कि टिड्डों का अटैक हो रहा है, उनको लोकुस्ट अटैक वगैरह,
तो ऐसा एक बार चाइना के साथ भी हुआ था। तो चाइना ने क्या किया कि 1959 में माओ की सरकार आई थी, बोला कि लोगों के लिए ज़्यादा अनाज उगाएंगे। तो उन लोगों ने बोले कि लेकिन ये स्पैरो नाम की जो चिड़िया है वो सारा अनाज खा जाती है, अब वो अनाज खा जाएगी तो तो इसलिए उसे मारो। तो उन्होंने उसके घोंसले तोड़ना स्टार्ट किया, अंडे फोड़ना स्टार्ट किया, हंटिंग करना स्टार्ट किया, तब तक उड़ाते रहे कि एग्जॉस्ट होके गिर न जाए। तो कुल मिला के उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। अब जब ये टिड्डे वगैरह इन सब चीज़ों को ये बर्ड्स खाती थी, अब ये बर्ड्स नहीं रही तो उनकी पॉपुलेशन एकदम से स्वेल कर गई। तो दे एक्सपीरियंस वर्स्ट फेमाइन इन द ह्यूमन हिस्ट्री। तो मोर देन 35-40 लाख पीपल डाइड एंड दे हैड टू इम्पोर्ट बैक। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट्स नॉट दैट इजी। आपके फॉरेस्ट की क्वालिटी एंड लॉट मेनी थिंग्स, वाटर बॉडीज एंड द होल इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन इट। तो उनका भी एक हैबिटेट होता है। तो हैबिटेट मैनेजमेंट इज नाउ इन पॉकेट्स इज देयर। प्रोजेक्ट टाइवर चल रहा है, नेशनल पार्क्स बना रखे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रखी हैं। बट अब नाउ इज द टाइम दैट, लेकिन अभी अभी भी आप देखोगे कहीं पे कोई मान लीजिए वाइल्ड लाइफ आती है तो हाउ पीपल रिएक्ट। आप लेपर्ड अटैक होगा तो पूरा गांव इकट्ठा या फिर पूरा शहर इकट्ठा हो जाएगा, तो देन एनिमल विल अटैक। तो वी हैव नॉट लर्न टू लिव विद द एनिमल, वी डोंट नो मच अबाउट देयर बिहेवियर। सो इट्स अ चैलेंजिंग इशू, बट गवर्नमेंट इज वेरी सेंसिटिव, वी आर डूइंग बेस्ट। मेरा एक और था इसके अंदर, मेरा एक थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है अपन लोग अभी भी ऐसे हैं कि एसोसिएटिवनेस नहीं है फॉरेस्ट के साथ अपन लोग। मतलब जैसे मैंने देखा, मतलब ये पहाड़ों पे देखा, जब हम जंगलों के अंदर डीप इन द फॉरेस्ट माउंटेन्स में जाते हैं, लोग ऐसे आते हैं वहाँ घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्फी लेने आते हैं, तो क्या करते हैं वहीं पे खाएंगे चिप्स और उस खाई के अंदर उस पेपर को फेंक देंगे। अब वो ये नहीं समझते कि इतने गहरे जंगल के अंदर वो उठाने कौन जाएगा, है ना, या इसका अगर बाकी वन जीवन या वाइल्ड लाइफ कंज्यूम कर लेता है तो उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब मेन जो इशू है ना, मतलब गवर्नमेंट तो काफी कुछ करती है, कोशिश भी कर रही है, और तुम जैसे डेडिकेटेड ऑफिसर है तो अच्छा कर भी रहे होंगे, नो डाउट। लेकिन मुझे लगता है लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है कि हम किस पर्सपेक्टिव में फॉरेस्ट संभालने की इंपॉर्टेंस रखते हैं। वंस दैट अवेयरनेस कम्स, देन वो लेपर्ड अटैक्स भी हमको उतने, मतलब पहले इंडिया में तो कल्चर है ही ना, हम जानवरों की पूजा करते ही हैं, है ना, सांपों की पूजा करते ही हैं, है ना, हम गरुड़ को भगवान मानते ही हैं। तो हम पक्षियों को नहीं मारेंगे कभी, जो चाइना के अंदर किया मे भी लोग, but that associativeness is somehow missing. Acha, coming on to the one of the last questions of today's discussion, how was the IIT JEE athletics experience for you? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं हम दोनों के रूट्स वहीं से जाके मैच करती है, and you have done great things with athletics in IIT, right? सर In आप, IIT then. IIT Delhi की लाइफ वाज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, आई वुड से, इफ आई लुक बैक टुडे। क्योंकि IIT इज नॉट जस्ट अ इंस्टीट्यूशन वेयर यू आर गेटिंग बेस्ट ऑफ द एजुकेशन, बेस्ट ऑफ द प्रोफेसर। योर प्रोफेसर्स आर so supportive, so friendly, you are having coffee with them while outside the class talking to them, and you can get all the kind of a support. Then much more than that is hostel life in IIT, and hostel life is made interesting by the sports. So अब एथलेटिक्स से तो बहुत क्लोज एसोसिएशन था। अब आप ही के गाइडेंस में हम लोग जो है, आप कैप्टन हुआ करते थे और हम डेली ग्राउंड पे इतना समय बिताया करते थे। वी वर फॉर्चुनेट टू हैव सम people who have represented in Olympics or qualified for Olympics being our coaches। तो वो एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि जिसने फॉरेस्ट जो स्पोर्ट्स के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दिया कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ स्पोर्ट्स इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ। आई विल ऑलवेज प्रमोट एंड आई डू प्रमोट। एंड IITs के अंदर स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स का कल्चर है, आई वुड से दैट इज द बेस्ट you can ever imagine in any college। and the personality development में, और आपको चाहे IIT के अंदर देखिए स्पोर्ट्स ही नहीं है, स्पोर्ट्स के लिए इलेक्शंस भी होते हैं, दैट हैपेंस एट अ मेगा स्केल। आई वाज इलेक्टेड फॉर जनरल सेक्रेटरी एंड तो दैट वाज अ वेरी नहीं, मैं इस एनरिचिंग। पे बाकी लोगों को नहीं बताया, मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मोहन के बारे में। मोहन is one of the most helpful person in the whole of IIT Delhi that I have ever met, in the community as well. Mohan has helped me in so many ways. तो Mohan was hostel sports secretary, and हमको हमारा एम्बिशन था, मतलब कि हमें कहीं ना कहीं उसको हमने सोचा कि ये BSA के अंदर बहुत अच्छा करेगा, तो जो IIT की स्पोर्ट्स मेन बॉडी है उसका हम इसको हेड बनाना चाहते थे, एंड ही वन दैट इलेक्शन विदाउट एनी पॉलिटिक्स। So it was like people voted for him. Obviously, we all tried and campaigned for him, but he won that election based on just good relations with people and on the face value that he would do great for the country. Right?
So I guess Yes, इसकी sir. वजह से करा भी. We scored, I guess, second position in inter-IIT. Yes, sir. IIT Delhi from like from fifth or sixth we jumped to the second position. We were very close to first position. तो अभी जैसे इस बार भी IIT दिल्ली फर्स्ट आया तो डीन सर से बात हुई तो मोहन हम तुम्हारे टाइम पे थोड़ा सा मिस हो गए थे बट वी गॉट द ट्रॉफी दिस ईयर ही वाज टेलिंग मी and we improved like anything in sports and sports is the best thing you will find in IITs. The hostel life is the best thing, campus life is so beautiful and you will cherish those days forever in your life. So this is the small journey, like just sometime when we are preparing we think कि यार कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं. तो अगर कई बार ज़्यादा डाउट आए तो एक IIT का राउंड लगाया हो अगर आप उसके पास हैं तो that will be the compass that will inspire you itself that I want to come to this campus to not just to study. आजकल study तो online भी हो सकती है. That campus life you cannot get at other places. Definitely there are many good places but you will miss those friends and those days you will spend in college. They are amazing part of your life. तो all those who are in worry कि भाई IIT नहीं है तो क्या होगा, तो not a big deal but I would say कि if you are not feeling much motivated तो एक विजिट sometime should help you in class 10th or 11th. आजकल वो IIT में भी ओपन हाउस करके एक इवेंट कराते हैं अप्रैल के मंथ में, तो स्कूल किड्स फ्रॉम अराउंड आर इनवाइटेड to see what is happening in life in IITs, to expose them to the IIT so that they can inspire. Even sir, Madhya Pradesh se about 400 tribal kids were taken to IIT so that they know ke how much their life can do. Madhya Pradesh government is teaching them for training them ke you should aspire for IIT and many are getting selected. So that visit was itself planned to inspire them that your life can change this much. And definitely it is a positive or one of the best development which is possible and everyone should aspire for. Nothing wrong in it. Thank you, sir. Thank you, Mohan, for such an informative session. मेरे को भी फॉरेस्ट के बारे में इतना नहीं पता था, खासकर जब तुमने कोरोना और बाकी चीजें और केमिस्ट्री से रिलेट करके हैंड सैनिटाइजर के एग्जांपल से इतनी सारी बातें इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी. Mohan is a very humble and a very helpful person. अगर किसी को भी किसी भी तरह के डायरेक्शन की जरूरत है तो यू कैन रीच आउट टू हिम. जस्ट गिव मी अ मैसेज एंड आई विल फॉरवर्ड हिज नंबर टू यू. एंड ही इज अ वेरी हेल्पफुल ह्यूमन बीइंग. हमारी हेल्प हमेशा करने की कोशिश करेगा. थैंक यू Mohan for coming. Thank you all for coming. We will meet tomorrow again at 8 with an upskill session. I will teach you something regarding maintaining consistency in your life. तो अगर तुम्हें पढ़ाई में consistency का issue आता है तो we will discuss the logic of and the idea behind how to develop self-discipline in our life. Right? Thank you all. Thank you for coming. Thank you, Mohan, for coming. Thank you so much, sir. And about environment and climate and forest, we can have another session some other time. There is a lot many things which society should know about the very environment which they live and how it is impacting their life. So a session. Yeah, we can also do a session on IAS because environment एक बहुत important issue है. मेरे ख्याल से उसमें environment की preparation कैसे करनी चाहिए. काफी IAS aspirants की मन में कुछ भी होगा. If they come up with that query, we can obviously take it. Definitely. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Okay.